Continuing with trigonometric functions, chapter 3 on 5th August, we will be talking about miscellaneous exercise, some questions of miscellaneous exercise that we have not done yet. Up to question number 7, 1 to 7, we have already done these questions. So आज जो हम questions address करने वाले हैं वो है question number 8, 9th and 10th of miscellaneous exercise NCERT. The format of the question is, I need to find, for example, tan x is given. I need to find out sin x by 2, cos x by 2, and tan x by 2. Yes or no? So I need to half the angles. मेरे angles क्या हो जाने चाहिए? Half हो जाने चाहिए. So definitely I will go for half angle identities. Now half angle identities कौन कौन सी हैं? पहली अगर मैं बात करूं sin x की, तो sin x is equals to 2 sin x by 2 cos x by 2. जो भी एंगल यहाँ लिखा है उसका हाफ हो जाता है. ठीक है क्या? Similarly, I have cos x as cos square x by 2 minus sin square x by 2, 2 cos square x by 2 minus 1, and 1 minus 2 sin square x by 2. We also have tan x as 2 tan x by 2 upon 1 minus tan square x by 2. हमने ये सारी आइडेंटिटीज किस फॉर्मेट में देखी है? इस आइडेंटिटी को हमने देखा था sin 2x के फॉर्मेट में, इस आइडेंटिटी को देखा था cos 2x के फॉर्मेट में, एंड tan के आइडेंटिटी को क्या देखा था? 2x के फॉर्मेट में. The understanding that we built was जो भी एंगल यहाँ है उसका हाफ कर दिया जाता है. So अगर यहाँ पे x है तो x का हाफ x by 2 और x by 2 हो गया. I hope I'm making myself clear here. सबको आइडेंटिटीज याद आई? Yes. Yes. Yes, तो sir. यहाँ पे इन क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो हम यूज करते हैं, मैं हमेशा ये वाली आइडेंटिटी यूज करता हूँ. I do not go for anything else. I always go for this, and particularly these two. Now imagine, understand. For example, I have cos x. क्या यहाँ से मुझे cos x by 2 की वैल्यू मिल जाएगी? Yes or no? If this is given, क्या मुझे cos x by 2 का वैल्यू मिल जाएगा? Yes or no? Yes. Similarly, Yes. cos x is equal to 1 minus 2 sin square x by 2. Again, if cos x is given, can I find out sin x by 2? Yes. Yes. Now that I have sin x by 2 and cos x by 2, क्या मैं tan x by 2 निकाल सकता हूँ इन दोनों को डिवाइड करके? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, just for the sake of taking one example, one random example, I am saying, let's say cos x is equals to let's say 3 by 5. Just randomly I have taken anything. मैं कोई क्वाड्रेंट वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ. क्वेश्चंस जो हमारे एनसीईआरटी में है उसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऐड होती है, वो हम थोड़ी सी देर में देखते हैं, बट पहले हम इसको देखते हैं. लेट्स से cos x 3 by 5 है. मैंने कहा 3 by 5 is equals to 2 cos square x by 2 minus 1. minus 1 इधर जाएगा, plus 1 हो जाएगा, so this will be 8 by 5 is equals to 2 cos square x by 2, then 2 से 8 cancel होगा 4, and then cos x by 2 is equals to plus minus 2 by root 5. yes or no? अभी प्लस होगा या माइनस, ये क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा, वो हम देखते हैं थोड़ी सी देर. मैं बस ये बता रहा हूँ कि हाउ विल इट वर्क. सिमिलरली cos x से मैं sin x की वैल्यू भी निकाल पाऊंगा. देखो sin x by 2 की वैल्यू आएगी यहाँ पे 2 sin square x by 2 is equals to 1 minus ये 3 by 5 इधर आएगा, that is 2 by 5. 2 से कैंसिल 1 टाइम्स, sin x by 2 is equals to plus minus 1 by root 5. yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मेरे पास cos x है तो मैं कोई भी हाफ एंगल निकाल सकता हूँ. अब अगर sin x by 2 और cos x by 2 है तो मैं tan x by 2 तो आराम से निकाल सकता हूँ. So are you understanding the thought process that we are going to apply here? Yes, sir. Good. Now Yes. let's talk about some quadrants and a question particularly from NCERT only. So NCERT का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. Let's say question number 9. 8th कराता हूँ लेकिन 9th कर लेते पहले. Question number 9. अगर तुम इसके ऊपर लिखी हुई लाइन पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा find sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2 in the following. And the question is cos x is equals to minus 1 by 3. X belongs to third quadrant. Okay. Now cos x नेगेटिव है because x belongs to third quadrant है. बिल्कुल सही बात है.
यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट पता हो तो हमें पाई से 3π/2 तक होता है क्या x? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर मैं x/2 में जाना चाहता हूँ तो मुझे ये भी तो पता चलना चाहिए x/2 का क्वाड्रेंट क्या है, तो मैं x/2 देखता हूँ। इसको हाफ से हाफ कर दिया इसको सबको, है ना? सो π/2 डिवाइड कॉमा 3π/4, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम हुई? अब देखो π/2 मतलब ये वाला पॉइंट और 3π/4 मतलब समवेयर हियर। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट, यस और नो? Yes, sir. इसका मतलब Yes, sir. cos x/2 जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, sin x/2 जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा और tan x/2 जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। ये मैंने कैसे पता किया? सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट से। यस और नो? Yes, sir. सबको क्वाड्रेंट देखना समझ में आया क्या? Yes, sir. नाउ इसकी वैल्यूज निकालना इज प्रीटी इजी। ठीक है, कैसे? मैं लिखूंगा cos x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। cos x की वैल्यू -1/3 पुट की, 2 cos स्क्वायर x/2 -1 पुट किया, -1 इधर आएगा +1, तो 2/3 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल, तो cos x/2 प्लस माइनस 1/√3 आ रहा है। इस प्लस माइनस में से मैं प्लस लूं या माइनस लूं? बोले? मैं इस प्लस माइनस की जगह माइनस लूंगा बिकॉज x/2 बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। यस और नो? Yes, sir. तो ये बात समझ में आ गई। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा ही वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, किससे पता चलता है? क्वाड्रेंट से। तो हमें क्वाड्रेंट्स को नहीं छोड़ना। बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलर इज द केस जब मैं लिखूंगा cos x इज इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। मैंने कहा cos x की वैल्यू -1/3 है, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, तो 2 sin स्क्वायर x/2 is equals to 1 + 1/3 4/3, sin square x/2 is 2/3, and then sin x/2 is equals to plus minus √2/√3। now प्लस माइनस में से प्लस लो या माइनस लो? देखें sin x, देखिए बात सुनो, x/2 है ना, एंगल, एंगल क्या है? x/2। अब x/2 कहां से बिलोंग कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव होता है, तो इसकी जगह हम क्या लेंगे? प्लस। बात समझ में आ रही है क्या सबको कि हम कैसे देख रहे हैं? Yes, sir. एंड लास्टली मुझे tan x/2 चाहिए, तो tan x/2 क्या होता है? sin x/2 अपॉन cos x/2, that is √2/√3 divided by -1 upon √3। √3 से √3 कैंसिल, फाइनल आंसर इज -√2। -√2 से ये क्या सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव? Yes, sir. yes or no? Everyone Yes, has sir. understood what the process is, right? हम कौन सी आइडेंटिटीज यूज करते हैं? cos x वाली। any issues anyone? No, No, sir. now No, sir. let's talk about question number 8। सबसे पहले तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है tan x is equals to minus का 4/3 and x is in second quadrant। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब π/2 से पाई, yes or no? सब लोग मुझे ये बताएं पहले x/2 कहां से कहां तक ट्राई करेगा? yes, sir. Yeah. बताओ x/2 कहां से कहां तक ट्राई करेगा? π/4 to π/2, हाफ हाफ करना है इसको। x से x/2 पे जाना है तो क्या करना है? हाफ करना है क्या?
Yes, sir. पाई बाय 4 से पाई बाय 2 मतलब पाई बाय 4 से पाई बाय 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया क्या? Yes. x बाय 2 अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट से है तो सभी कुछ पॉजिटिव आएगा, sin x बाय 2 भी पॉजिटिव आएगा, cos x बाय 2 भी पॉजिटिव आएगा और tan x बाय 2 भी पॉजिटिव आएगा। यस और नो? Yes, sir. Yes. आई हैव tan x। सर tan x से कैसे करेंगे? मैं कहता हूँ मुझे tan x में ये परपेंडिकुलर पता है, मुझे ये बेस पता है, मैं cos निकाल लेता हूँ। cos x will be equals to 3 by 5 and with a minus sign because x belongs to second quadrant। x तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, sir. No, sir. नाउ दैट आई हैव cos x, क्या मैं अपनी आइडेंटिटीज अप्लाई करके sin x by 2 cos x by 2 और tan x by 2 की वैल्यूज निकाल सकता हूँ? Yes, sir. सो इससे आगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10 will be your homework which will be based upon the same concept, same formulas। एक बार अटेम्प्ट करेंगे, अगर प्रॉब्लम आती है हम कल डिस्कस करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. इसी बेसिस पे तुम्हारा एग्जाम्पल Yes. 28 भी है, वो भी तुम्हारा होमवर्क होगा। ओके मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 27 डिस्कस करेंगे। देखो सेम कॉन्सेप्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाय 8। अब पाई बाय 8 हमने पाई बाय 4 की वैल्यूज याद कर रखी है, पाई बाय 6 की कर रखी है और पाई बाय 3 की कर रखी है। यस और नो? पाई बाय 8 तो नया ही आया है। यस और नो? Yes, sir. मैं Yes, कहता sir. हूँ कि ये जो है ये लेट्स से x बाय 2 लिखा है, x क्या हो गया? पाई बाय 4 हो गया क्या, जिसकी वैल्यू मुझे पता होती है? Yes, sir. Yes. tan पाई बाय 4 इज 1। मुझे क्या निकालना है? tan पाई बाय 8 मतलब tan x इज इक्वल्स टू 1। आई नीड टू फाइंड आउट tan x बाय 2। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस और नो? Yes, sir. किसी को भी अगर प्रॉब्लम है तो बात सकते। ये क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग है कि क्वेश्चन हम किस तरह से अप्रोच करेंगे। आई एम प्रोवाइडेड विद tan x, आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan x बाय 2। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No. No, sir. ओके नाउ इफ यू विल पे अटेंशन, मैं देखो एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छा लगेगा। और जो बच्चे उसे याद करना चाहे वो याद भी कर सकते हैं, हालांकि आई डू नॉट सजेस्ट बच्चों को याद करने के लिए। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। cos x इज इक्वल्स टू क्या है? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाय 2। तो देखो 2 sin स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos x है क्या? जस्ट वही आइडेंटिटीज। x बाय 2 में जाने के लिए मैंने अभी भी क्या सिखाया? बेस्ट आइडेंटिटीज कौन सी है? यही वाली है। Yes, sir. यस और नो? बोले भाई क्लास में। एवरीवन एम आई ऑडिबल? ओके नेक्स्ट अगर मैं बात करूं sin cos x इज इक्वल्स टू Yes, sir. 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 है, तो 2 cos स्क्वायर x बाय 2 तो मैं लिख सकता हूँ कि 1 प्लस cos x। देखो ये माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. अगर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया जाए 2 sin स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाय 2 तो मुझे क्या मिल रहा है? 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। 2 से 2 कैंसिल। tan स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos x अपॉन 1। करना तो हमने यही है, tan x से cos x निकाल लेंगे। cos x की वैल्यू क्या आएगी? 1 बाय रूट 2। यस और नो? Yes, sir.
cos x की वैल्यू 1/√2 आई तो हमने क्या किया sin x/2 भी निकाल लिया, cos x/2 भी Yes, निकाल sir. लिया और फिर दोनों को डिवाइड करेंगे। मैंने इसको क्या किया है, तुम्हें जनरल बता दिया है, जनरल मेथड। मैंने वैल्यूज पुट ना करके मैंने फॉर्मूलाज पुट कर दिए। एनी प्रॉब्लम एनीवन? तो tan स्क्वायर x/2 क्या आ रहा है, देखो 1 - 1/√2 अपॉन 1 + 1/√2, √2 - 1 अपॉन √2 + 1। रेशनलाइज कर सकते हैं इसको, Yes, sir. √2 - 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, so we'll be getting √2 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1। दिस इज tan स्क्वायर x/2। tan x/2 कितना आ गया, प्लस माइनस √2 - 1। अब ये प्लस आएगा या माइनस, ये किस पे डिपेंड करेगा, क्वाड्रेंट पे, यस और नो। Coordinate. Yes, sir. अब देखो π/4 का हाफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, No, sir. So based upon the same concepts, same concept कौन सा है, to go from x to x/2, and the identities that will be very useful for us will be this one. This is the most used identity in trigonometry. Everyone understood? Yes. yes, sir. Moving on, ये concept यहाँ खत्म हुआ x/2 पे जाने का। Next concept that we have is example 25. It's a very common basic concept. Let's see what is the concept. Sin x is equals to 3/5 and cos y is equals to -12/13, where x and y both lies in second quadrant. x और y दोनों कहाँ से हैं, second quadrant में। Find the value of sin x plus y. तो मैं कहूंगा sin x plus y क्या होता है, sin x cos y plus cos x sin y, yes or no? Yes, sir. ना इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट कर दूं, तो देखो मुझे sin x की भी वैल्यू चाहिए तो cos x की भी वैल्यू चाहिए, cos y की वैल्यू चाहिए तो sin y की भी वैल्यू चाहिए। तो sin x है, sin x से हम cos x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस, तो बेस कितना आ गया 4, तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब आगे प्लस आएगा या माइनस, हमेशा सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट ही, प्रेशर पॉइंट हर क्वेश्चन का क्या है, प्लस आएगा या माइनस। cos x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, यहां से देख के बताओ। everyone, negative it will be, right, because second quadrant है x belongs to second quadrant और second quadrant में cos नेगेटिव होता है। similarly cos y बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, तो sin y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/13, प्लस और माइनस, Plus. क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव है, बिल्कुल सही। नाउ लेट्स स्टार्ट पुटिंग वैल्यूज, खत्म हो गया क्वेश्चन। sin x plus y की वैल्यू निकालनी, sin x की वैल्यू 3/5, cos y की वैल्यू -12/13 प्लस cos x is -4/5 into sin y is +5/13। आई बिलीव सबको समझ में आ रहा है। Yes, sir. So I have minus का 56/65, and with this question I complete trigonometric concept.